Okay, we have already completed two factors of production, that is land and labor. What is land in economics? What is land in economics? What did you learn? What is land in economics? Anybody? It is natural factor of production. Okay. But when I say land in general sense, it is only the upper crust, surface of the earth. But in economics, it has the wider meaning. What does the land means in economics? Land is geographically immobile. That is all okay. You don't tell me the characteristics. Land economics में किसको बोला जाएगा? Only upper crust या land क्या include करेगा? Remember? Anybody? अगर मैं लैंड बोल रही हूँ इकोनॉमिक्स में तो लैंड क्या है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज ऑन द लैंड. यस विश्वा. Rivers, mountains, trees, plants, everything that is on land. Water bodies, climate, fertility of the land, it includes everything. Minerals that you find under the crust, अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ के नीचे जो है, वो सारा ही लैंड इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेगा. In economic terms, land means the different types of natural resources. Okay. Then, what is labor in economics? Labor economics में क्या है? Generally, अगर मैं labor बोल रही हूँ, तो it means the physical labor. But economics में labor का मतलब क्या? What is labor? Anybody? Moheb? What is labor in economics? जैसा लैंड का वाइडर मीनिंग है वैसे ही लेबर का भी वाइडर मीनिंग है. द वर्क डन फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी. मैं आपसे जस्ट मीनिंग पूछ रही हूँ कि लेबर जनरली जब मैं लेबरर बोलती हूँ या लेबर बोलती हूँ तो दैट इज द फिजिकल वर्क, इजंट इट? पर इकोनॉमिक्स में लेबर हैज वाइडर मीनिंग. फिजिकल वर्क नहीं है, इंटेलेक्चुअल वर्क भी है. In economics, physical and mental work that we do. Yes, physical and mental work, intellectual work that you give for or against money. That is labor, isn't it? और land के लिए क्या बोला है? Immobile क्यों है? Why it is said it is immobile? I'm getting answers from only few same students. Anybody else? Land के लिए immobile क्यों बोला है? Yes, piece of land you cannot move from one place to the other place. एक
लैंड का पीस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उसको ज्योग्राफिकली इमोबाइल बोला गया है। यस सृष्टि। ओके, लेबर जो है जनरली मूव होता है, लेबर इज मोबाइल फैक्टर। उसके बेसिक रीजंस क्या होते हैं, लेबर क्यों मूव होता है? व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स और रीजन फॉर लेबर बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस? Because labor can't be stored or else it will perish. मैं आपसे ऐसा पूछ रही हूँ कि लेबर जो है मोबाइल होता है या मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसके बेसिक रीजंस क्या होते हैं? लेबर क्यों मूव होता है? इकोनॉमिक और सोशल रीजंस, करेक्ट। या इकोनॉमिक रीजंस होते हैं इनकम अपना बढ़ाने के लिए, अच्छा आपको जॉब या काम ढूंढने के लिए मूव कर सकते हैं, या कोई सोशल रीजन हो सकते हैं फैमिली की वजह से, या लड़की का मैरिज हो गया, दैट इज द सोशल रीजन, isn't it? Okay, we'll proceed further with the next factor, that is capital. In the modern times, capital is considered to be highly important factor of production. All man-made goods which help in the production constitutes capital. जो भी सारे man-made goods हैं जो आपको प्रोडक्शन में मदद करेंगे, प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे, वो सारा कैपिटल है। It is different from land and labor as it is a produce factor of production. वो man-made है, produce factor of production है, and it is different from land and labor. In other words, it is man-made factor of production. For example, tractor है, it is man-made, और वो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, तो वो कैपिटल है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। आपने वेल्थ पढ़ा है, कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस है। दो सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ भी हो सकता है। इट इज नॉट सो ऑलवेज, समटाइम्स जो वेल्थ है वो आपका कैपिटल बन सकता है, पर हर बार नहीं। A good may be capital good as it help in production. आप कैपिटल बोल सकते हैं अगर वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो, बट इट मे नॉट possess all the characteristics of the wealth. पर वो जरूरी नहीं है कि वेल्थ भी हो। कैपिटल का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, देन इट इज कैपिटल। पर वेल्थ क्या है, wealth will not always help you in the production process. तो wealth हमेशा capital नहीं होगा। और another good may be wealth but not a factor of production. wealth जो है वो हमेशा factor of production नहीं बन सकता। wealth कब factor of production बनेगा, अगर वो आपको production में help कर रहा है तो। then characteristics है, capital is man-made, factor of production है, it is the most mobile, सबसे mobile factor है। The increasing demand for the capital in the present time owing to increase the capital in intensive methods of production have resulted in increasing the scarcity of the factor. बहुत ज़्यादा डिमांड है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल अगर नहीं है तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो इट इज हाईली डिमांडेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए उसका स्केर्सिटी है। द रेम्यूनरेशन जो आपको कैपिटल के बदले में मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट। लैंड को रेंट मिलेगा, अगर आपने किसी को लैंड दिया है तो उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा।
आपका लैंड अगर किसी ने यूज किया तो लेबर को सैलरी या वेजेस मिलेगा, वैसे ही कैपिटल अगर आपने किसी को दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देन लास्टली वी हैव एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर व्हिच ब्रिंग्स टुगेदर, या सारे ही फैक्टर्स को साथ में लाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा विद ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे ही फैक्टर्स को एक साथ मिला के उनको साथ में काम करवाएगा, दैट इज एंटरप्रेन्योर। कौन सा काम करना है? प्रोडक्शन प्रोसेस, which is an economic activity. There is difference between management and coordination. Management and coordination दो different चीजें हैं। Management जो है is done by the manager. Manager business को manage करेगा, who is a salaried person, जिसको salary मिलेगा, जो employee है of the entrepreneur. But entrepreneur is the person who set up the enterprise. Entrepreneur जो है वो खुद ओनर है, जो बिजनेस को सेटअप करेगा, एंटरप्राइज को सेटअप करेगा, तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो प्रॉफिट होगा। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, लॉस हुआ तो एंटरप्रेन्योर को लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर जो है वो सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉय है, दूसरे एम्प्लॉयज की तरह एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर, वो रिस्क उठाएगा बिजनेस में। किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, ज्यादा प्रोड्यूस करके रखेंगे, डिमांड कम हो गया, रिस्क उठाएगा, उसको लॉस हो सकता है। गोडाउन में गुड्स प्रोड्यूस करके रख दिए, कुछ ऐसा डैमेज हो गया गुड्स को, तो एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाएगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में और वो डिमांड में रहा नहीं रहा, सेल हुआ नहीं सेल हुआ, लॉस हुआ, वो एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाएगा। सो ही इज द रिस्क टेकर फॉर सेटिंग अप एन एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन या ट्रेडिंग करने के लिए एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाएगा। दिस फैक्टर डज नॉट गेट द फिक्स्ड रिटर्न बट ट्राइज टू जनरेट द इनकम बाय रनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली। उसका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा चला तो प्रॉफिट होगा, नहीं हुआ तो लॉस भी हो सकता है, तो उसका जो रिटर्न है या रेम्यूनरेशन है वो फिक्स नहीं है। She may incur a loss if the activity does not function well. Loss भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। This factor is the decision maker. वो सारी decisions लेता है which are related to the activity that he is doing. Produce कर रहा है तो जो भी decisions है relating to the production of the goods, वो decision खुद लेगा entrepreneur. This factor is known as the risk taking factor. सारी रिस्क बिजनेस में एंटरप्रेन्योर उठाएगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो भी उसने रिस्क उठाया उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ उसको भी फेस वो खुद करेगा। इट possess द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी भी एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इज कि सारे ही फैक्टर्स को वो साथ मिला के रखेगा, उनसे साथ मिलके काम करवाएगा, अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में। द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है। उसका जो रेम्यूनरेशन है वो प्रॉफिट होगा। क्लियर टिल हियर? यहां तक समझ में आया आपको? Okay, we are done with all the 4 factors of production. Finally, we have the trade cycle, the last part of your second chapter.
Trade cycle is the economic activities go through the phases of the dynamic changes. Like a human life goes through the changes. जैसा human life में changes आती हैं, human beings की life में कैसी changes आती हैं? Born होता है बच्चा, बड़ा होता है, young, youth, then old citizen, और फिर डेथ होता है. जो डिफरेंट फेजेस ह्यूमन लाइफ में आते हैं, वैसा ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी डिफरेंट फेजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं. सच चेंजेस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स. कौन से चेंजेस आते हैं? एक इरेगुलर चेंजेस है, सीजनल चेंजेस है, लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, long run dynamic changes. First is irregular changes. These are accidental changes. All of sudden happen होता है, accidentally happen होता है economy में, which occur in an economic activity. Example is flood, famine, storm, fire, so on. Such accidental impact an economic activity in the short run and sometimes in the long run. जो भी ये irregular changes आती हैं, जो accidentally changes आती हैं इकोनॉमी के अंदर, all of sudden natural disasters, flood आ गया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, असर होता है. आपका जो डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट कम हो सकता है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, या वो ज्यादा अगर इम्पैक्ट इकोनॉमी में रहा तो लॉन्ग रन के लिए भी वो चेंजेस रह सकते हैं. और जैसे ही ये नेचुरल डिजास्टर है या फायर मैन मेड है, उसकी वजह से आपका जो बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है, उसकी वजह से डिमांड कम हुआ तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. These changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only. जैसा कि फ्लड आया कोई पर्टिकुलर रीजन में ही आया है, सब जगह पे नहीं आएगा. तो जहाँ पे भी फ्लड आया है वहाँ का इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, लॉसेस होंगे. Only in the agriculture sector or only in the industrial sector. Then seasonal changes हैं. These changes regularly occur in the economic activities. जो seasonal changes हैं वो regular occur होंगी. With changing season, जैसे ही season change हुआ तो seasonal change जैसे ही होता है तो उसका effect आपके डिमांड के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर होगा. डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय द सीजन. विंटर का सीजन है तो डिमांड फॉर विंटर गुड्स होगा, मॉनसून का सीजन है तो डिमांड फॉर मॉनसून गुड्स हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में ऑल्सो चेंज. तो जैसा सीजन है वैसा ही आपको प्रोडक्शन भी करना है, वैसा ही लोगों को आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो सीजनल गुड्स आपके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं. Then long run regular changes. Some regular changes occur in the given direction in the form of trend. These are directional changes which occur in an activity. जैसे कि some regular sales trend. कोई particular चीज है जिसका sell शुरू हुआ. That depends upon the fashion, likes and dislike of the people in the economy. टाइम टू टाइम जो लोगों का लाइक डिसलाइक पैशन चेंज होता है, दैट कुड बी लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस. देन साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, डायनामिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं अराइजिंग इन द इकोनॉमी. दीज आर फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू राइज in the growth of the economic activity. ये जो changes आएंगे, fluctuations आएंगे, उससे economic activity जो है वो grow होगा, बढ़ेंगी.
या फॉल होगा। तो जो इकोनॉमी के अंदर राइज या फॉल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, राइज जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। या फिर फॉल हो जाता है, डिमांड फॉल हो जाएगा, प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा, प्रोडक्शन फॉल होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी फॉल होंगी। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होती हैं इकोनॉमी के अंदर, these are trade cycles. The rise and the fall in the economic activity is cyclical in nature. उसको cyclical in nature इसीलिए बोला जाता है कि वो एक तरीके का पीरियड हमेशा नहीं रहेगा। इकोनॉमी में राइज होगा, फॉल होगा, फिर राइज होगा, फॉल होगा, तो it remains continue like a cycle. Such changes occur in the economic activity and growth process of the economies also goes through these changes. And the study of these dynamic changes are called the trade cycle. ये जो सारी changes occur होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसकी वजह से आपका ग्रोथ भी हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल हुआ तो आपका इकोनॉमी जो है वो फॉल डाउन होगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो आप प्रोड्यूस कम करेंगे तो एम्प्लॉयज को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर टिल हियर?